Hello students. Today in this class we are going to begin our studies with chapter 1 of science, matter in our surroundings. So in science we study about everything, knowledge of everything from smallest particle to the biggest universe, and we divide this subject into mainly three branches: physics, chemistry and biology. And this chapter is a part of chemistry because we are studying about physical and chemical properties of materials and all the matter. So matter in our surroundings, you can see a lot of materials around you. Wherever you are, there are a lot of things, and some things are visible, some things are not visible. Okay, but that doesn't define matter if you can see or not. Matter is defined by anything that occupies space and has mass. So anything if that has some space, less or more, and has some mass, that is called matter. That can be air, water, or any solid thing. And to study matter we classify it. Earlier scientists used to classify on the basis of five elements, पंच तत्व जिसे हम बोलते थे: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल. But they used to say that all the material is made of these five things. In modern science we classify matter on basis of physical and chemical properties. Okay, on physical properties, as you know, we divide in solid, liquids and gases, and on chemical basis we can classify them into elements, compounds and mixtures, which we will study later. So now we will study about the nature of matter. First we will study physical nature, okay, physical properties. So one by one we will take them and also prove them. So first is, matter is made up of particles, small particles. Okay, matter is not one thing but a group of many particles. These particles are very tiny, very small, and they have space between them. These particles are moving continuously, they have kinetic energy, they are moving, and the particles of matter attract each other. Okay, but the degree of these properties, space, force of attraction, differs in solid, liquids and gases, but these properties are common in all materials. So first property is, matter is made up of particles. So कैसे prove करेंगे हम इसे? You simply have to take a glass of water and add sugar to it. What will happen? Sugar disappears, sugar dissolves. Where does it go? Sugar gets added between the particles of water. The particles of sugar gets added between the particles of water. You can see here are particles of water, and when we add sugar, sugar gets added between particles of water. So it shows that matter has particles. अगर matter में particles नहीं होते तो कोई भी sugar, salt, water में dissolve नहीं हो पाते. तो this proves that matter is made up of particles. Second theory was, the particles of matter are very tiny. So इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? You are taking 100 ml water and potassium permanganate. Potassium permanganate is potassium permanganate, KMnO4, which is pink in color, which gives pink color to the water. So इतने सारे 100 ml वाटर में आपको सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स ही पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं. ठीक है. So when you put potassium permanganate in 100 ml of water, it becomes pink. Okay. So just a few crystals of potassium permanganate makes so much water colored. It means कि एक क्रिस्टल में भी बहुत सारे particles हैं. It means that matter has a large number of tiny particles. Okay. सो इसके बाद आपको क्या करना है? 10 ml फर्स्ट ग्लास में से आपको लेकर 90 ml वाटर में ऐड करना है. फिर वापस सेकंड ग्लास में से 10 ml लेकर 90 ml वाटर में ऐड करना है. टोटल वॉल्यूम सेम रहना चाहिए. ठीक है. फिर 10 ml लेकर
थर्ड ग्लास में से फोर्थ में पुट करना है। वॉल्यूम सेम रहेगा सभी का 100 ml, ठीक है, बट अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिक्रीज होता रहेगा। सो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन कम होता जाता है और वाटर का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज होता जाता है। ओके, सो एज यू कैन सी द color of the potassium permanganate is fading. Okay, but the potassium permanganate crystals give color to the water. It may be bright color or dark color. So it shows that there are millions of tiny particles in each crystal. Okay, third property was particles of matter has space between them. So इस प्रॉपर्टी को भी आप, जैसे आपने शुगर वाला जो एक्टिविटी किया था उसी से आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इसीलिए शुगर जो है बीच में, शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ऐड हो पाते हैं क्योंकि बीच में स्पेस होता है। तो दैट प्रूव्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली moving. What you have to do, you can see in this figure, you have water और water में आपने ink को डाला और after some time you will see that पूरा water will get colored. Ink will spread throughout the water. It means that the particles of ink are continuously moving, are in continuous motion. Okay, so intermixing of two or more different types of matter is called डिफ्यूजन। जैसे आपने इंक, वाटर में इंक वो ऐड किया तो इंक डिफ्यूजेस, ओके, थ्रू आउट द वाटर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यू कैन सी पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, इट डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड में जो है मूवमेंट सबसे कम होगी, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। Fifth property, physical matter particles attract each other. Okay, there is some force of attraction. What you have to do, you have to take an iron nail, a piece of chalk and rubber band. So if you try to break them, breaking iron nail is most difficult because there is some force of attraction in between the particles of matter, and in iron this force of attraction is maximum. So generally in solids this force is maximum because there is very less space. Okay, in liquids force of attraction is moderate, medium, so space is also moderate. In gases the force of attraction is minimum, so the space is very high, the particles are very farly distributed. Okay, so this proves. So physically we can classify states into solid, liquid and gas. Okay, so all the properties are similar but there is difference which you will see now. जो प्रॉपर्टीज़ आपने अभी स्टडी की वो प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। कैसे? तो हम दो चीज़ें देखते हैं पहले, शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सो जो सॉलिड्स होते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड है, कोई बॉल है, आप बॉल को चाहे किसी भी कंटेनर में डालोगे तो बॉल की शेप वही रहेगी, किसी भी सॉलिड की शेप चेंज नहीं होगी, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, सो स्पेस इज मिनिमम। ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो वो पास पास होंगे, इसलिए स्पेस सबसे कम होगा। ठीक है, मूवमेंट भी उनकी कम होगी क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। कंप्रेसिबल, कंप्रेस मीन्स दबाना, कंप्रेस करना, सो दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल। आप देख सकते हो सॉलिड्स को कंप्रेस करना बहुत टफ होता है। डिफ्यूजन जो आपने पढ़ा था, मूवमेंट, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, दैट इज ऑल्सो मिनिमम। You cannot mix two solids together so easily.
तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. दिस इज अ सॉलिड. ओके, लिक्विड्स के बारे में पढ़ें तो हम शेप और वॉल्यूम की बात करते हैं. शेप आपको पता है, आप वाटर को ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप में वाटर हो जाएगा, वाटर को बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप में हो जाएगा. तो लिक्विड्स डू नॉट हैव शेप, बट वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम है 1 लीटर्स 2 लीटर्स, वो सेम रहेगा. तो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम्स. ओके, स्पेस की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंटरमीडिएट होता है, तो स्पेस भी इंटरमीडिएट ही होगा. मूवमेंट भी इंटरमीडिएट होती है. कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल देन gases but more compressible than solids. So, and rate of diffusion is more than solids. तो this is liquid, particles of liquid. Gases की बात करें तो gases have very free particles, force of attraction बहुत कम, और उस वजह से स्पेस भी बहुत ज़्यादा, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे वो, और रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होगा. दो गैसेस आपस में बहुत जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. शेप और वॉल्यूम की बात करें तो ना तो गैसेस का शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है. वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. ठीक है, जिस भी कंटेनर में गैस को डालोगे गैस पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी. तो गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप, ओके, एंड नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. You can see particles are very largely spaced. So properties of solids, liquids and gases basically depend on particles. Okay, their particles पर होंगे, and the interparticle space, intermolecular space और force of attraction पर properties depend करेंगी. तो you can see this diagram, solids particles, liquid particles and gas particles. Now can you tell me that if you can change these states? देखिए ये सॉलिड है आपका, ओके, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड. ओके, सो कैन यू चेंज दीज स्टेट्स? कैन यू चेंज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू solid? Can you change states? Yes, we can. And how? You can see the space. There are two methods, temperature and pressure, by which we can change states. Temperature and pressure. Okay. So जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम हीट एनर्जी सॉलिड को दे रहे हैं. ठीक है, when we heat a solid we are giving heat energy to the solid. Okay, and that heat energy is used, okay, to overcome the force of attraction between the particles. जो हीट हम देंगे सॉलिड को, वो हीट क्या करेगी, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगी. एंड दैट हीट एनर्जी गेट्स changes to kinetic energy. Particles gain kinetic energy and they start moving, they start vibrating. So when we heat a solid, heat energy is used to overcome the force of attraction between the particles. Particles gain kinetic energy and they start moving, and space between these particles increases. So by heating you can change solid to liquid, liquid to gas. Okay, and if we cool them, अगर हम गैस को कूल करते हैं, then we can change gas to liquid and liquid to solid. कूलिंग से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और वापस से वो अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएंगे. गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. वी कैन चेंज स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर. ठीक है, यू कैन सी, अगर आप गैस पे दोनों तरफ से प्रेशर लगाओगे देन पार्टिकल्स विल गेट क्लोज टू ईच अदर, और लिक्विड में और प्रेशर लगाएंगे तो देन दे विल गेट मोर क्लोज. यू कैन रीड दिस. When a solid is heated, it changes into liquid. When a liquid is heated, it changes into gas. Opposite, when a gas is cooled, it changes to liquid.
ओके, दे स्टॉप वाइब्रेटिंग, उनका वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है. दे चेंज टू लिक्विड एंड व्हेन लिक्विड इज कूल्ड दे चेंजेस सॉलिड. ओके, इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं. व्हेन वी मूव सॉलिड टू गैस वी हीट, और गैस से सॉलिड अगर वापस कन्वर्ट करना है देन वी कूल. ओके, सो दिस इज आइस वाटर. आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, then what will we do? We will melt, we will heat ice. Okay, and process of conversion of solid to liquid is called melting. And if you have to change water to vapors, you will heat again. Okay, that's how you can change state. What is melting? When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed, because heat energy increases the kinetic energy of particles and they begin to move freely. That's how it changes into liquid. But there is a particular temperature, fixed temperature, at which a solid begins to change into liquid. That is called melting point, and this process is called melting or fusion. Okay, so the temperature at which solids melts into liquid at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure होना चाहिए, that is melting point. Melting point of ice आपको पता है 0 degree Celsius. We can convert into Kelvin by adding 273. Okay, so you know that to change solid into liquid you give heat to the solid. तो उस heat का होता क्या है? Where does that heat go? That heat does not go anywhere. That heat is used, okay, to change the state, to overcome the force of attraction. That heat is hidden between the particles, and that's why it is called latent. Latent means hidden. Hidden heat of fusion, latent heat of fusion. The amount of heat energy, latent heat of fusion is amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी यूज होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, so this is, you are measuring melting point of ice. You can see this is 0 degree Celsius. There is a thermometer, and at 0 degree Celsius ice starts melting. Okay, there is another process you are familiar with, boiling. ठीक है, सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन. बॉइलिंग जो आपका लिक्विड है उस पूरे लिक्विड के अंदर होता है. ठीक है, सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड व्हाट विल हैपन? पार्टिकल्स विल begin to move faster, force of attraction will reduce, and space between particles will increase. So liquid will start converted to gas, vapor. ठीक है, सो बॉइलिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ओके, so what is the difference between we will compare these two processes, boiling and evaporation. Okay, before that let's study about latent heat of vaporization. तो अभी आपने latent heat of fusion पढ़ा था. Fusion is change of solid into liquid and vaporization is change of liquid into gas. So amount of heat energy required to change now 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure is latent heat of vaporization. Latent means hidden. So the heat which we give, the amount of heat, that is latent heat of vaporization, उसमें हम 1 kg ही लिक्विड लेते हैं. ठीक है, इस डायग्राम में हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं वाटर का, थर्मोमीटर. ओके, सो इन द टेम्परेचर एट विच bubbles start forming, that is boiling point. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मोशन आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको पता है. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन इंक्रीज होगा.
you have studied about fusion, boiling and now sublimation. ओके तो सॉलिड टू लिक्विड हो गया फ्यूज़न, लिक्विड टू गैस हो गया आपका वेपराइजेशन, बट सॉलिड टू डायरेक्टली गैस विदाउट लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज सब्लिमेशन. ओके सो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होता है, कैम्फर कपूर जो होता है वो भी सब्लाइम होता है. इस एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो, एक आपने चाइना डिश होती है एक, उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड को रखा और उसको हीट किया, तो हीटिंग से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, गैस के फ्यूम्स बनेंगे. ठीक है, वो गैस के फ्यूम्स एक इन्वर्टेड फनल में कलेक्ट हो जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद जब कूलिंग होगी तो वापस से वो फ्यूम्स सॉलिड बन जाएंगे और यहाँ पर इस फनल में कलेक्ट हो जाएंगे. ये एक्टिविटी हम करेंगे. इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आप कर चुके हैं, इसको रीड कर लीजिए. When pressure is applied on gas, particle come closer and gas changes into liquid and liquid changes into solid. Liquefy gases by applying pressure. जो LPG सिलेंडर में यूज होती है that is liquefied petroleum gas. Okay. There carbon dioxide. You know about carbon dioxide, which is a gas that can also occur in solid form. When we compress carbon dioxide, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं दैट इन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ड्राई आइस. सो व्हाट इज ड्राई आइस, दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके सो सॉलिड से स्टार्ट करें. सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, द प्रोसेस नेम इज फ्यूजन. ओके liquid to solid is called solidification. Liquid to gas is vaporization. Gas to liquid is condensation. Gas to solid or solid to gas directly is called sublimation. You can change these states by temperature and pressure. You have already studied. Now a very important process, evaporation. This is evaporation. Vaporization आपको पता है, vaporization is change of liquid into gas. But what is evaporation? So evaporation is a surface phenomenon. ये सिर्फ surface पर होगी. Change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, बॉइलिंग बाद में होती है, पहले इवेपोरेशन होता है. बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते. बॉइलिंग जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पर ही हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस. इवेपोरेशन में जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है. बॉइलिंग में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. इवेपोरेशन में आप इतना ध्यान रखिए कि ये चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट, and this is surface phenomenon. Particles from the surface gain energy. Okay, when you heat, particles on the surface gain energy to overcome the force of attraction, changes to vapor state. अभी हम देखेंगे कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रेशर. एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दूसरा होता है वेपर प्रेशर, जो लिक्विड के वेपर्स हैं उनका प्रेशर. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब बबल्स फॉर्म होंगे, दैट इज बॉइलिंग. ठीक है, इवेपोरेशन में वेपर प्रेशर कम ही होता है. इवेपोरेशन में बबल्स कैन नॉट फॉर्म सिंस द वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग में बबल्स कैन फॉर्म बिकॉज वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पर होती है, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. बॉइलिंग क्विक होती है. बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होता है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है.
बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते। ठीक है। सो और बॉइलिंग में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, इवेपोरेशन में वेपर प्रेशर कम ही रहता है। ठीक है। सो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मीन्स इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। इवेपोरेशन क्या है आपको पता है, ठीक है, सरफेस फिनोमिनन एंड लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ओके, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, बिकॉज इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वेपर्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वेपर्स प्रेजेंट हैं उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर एयर में ऑलरेडी वेपर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर इवेपोरेशन कम होगा, वेपर्स कम बन पाएंगे, क्योंकि एयर कैन टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर्स। जो बाहर एयर है लिक्विड से, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर ही आ सकते हैं। तो अगर वेपर पहले से ज़्यादा है तो और वेपर्स बनना मुश्किल होगा। तो दैट इज़ वाई इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये भी आपको पढ़ लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है इवेपोरेशन का, दैट इज़ इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। जहाँ भी इवेपोरेशन होगा उससे कूलिंग होगा। ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ऐसा क्यों होता है? सोचिए, इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है? देखिए, आपको गर्मी में पसीना आता है, पसीने आने के बाद आपको आपका जो है टेम्परेचर कम हो जाता है और उससे आपको कूलिंग फील होती है। पसीना जब सूखता है तो आपको ठंडा फील होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम गर्मियों में छत पर या खुले ग्राउंड में पानी डालते हैं तो उससे भी ठंडक हो जाती है। जो आप घर में मटका यूज़ करते हैं, पानी का मटका, वो भी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इवेपोरेशन का कॉज क्या है, याद कीजिए, इवेपोरेशन क्यों होता है। आपने पढ़ा है कि इवेपोरेशन का रीज़न है हीटिंग। जब भी हम हीट करते हैं तो इवेपोरेशन होता है। बट इवेपोरेशन ज़रूरी नहीं कि हमें हीट देनी पड़े। इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, सो जो रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन हो सकता है। तो जब भी इवेपोरेशन होता है, लिक्विड इवेपोरेट्स होता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, दे कैन टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अगर लिक्विड को वेपर्स में चेंज होना है तो उसे हीट लेना पड़ेगा सराउंडिंग से, और जब सराउंडिंग से हीट वो लिक्विड ले लेगा तो सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सराउंडिंग्स ठंडा हो जाएगा। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो द सराउंडिंग्स बिकम्स कोल्ड। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड मेक्स द हॉट सरफेस कूल। ओके, सिमिलरली इन समर्स वी स्वेट मोर। गर्मी में पसीना क्यों आता है, बॉडी ज़्यादा पसीना क्यों लेकर आती है? ताकि इवेपोरेशन से जो है स्वेट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, पसीना क्यों आ रहा है, इवेपोरेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जो लिक्विड बाहर आ रहा है, दैट इवेपोरेट्स बिकॉज इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से हीट लेकर पसीना सूख जाता है, और जब पसीना सूखता है इसीलिए हमें जो है गर्मी कम लगती है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो जो पसीना आना, पर्सपिरेशन, ये हमारी बॉडी की ही प्रोसेस है ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। ओके, हम समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि कॉटन जो है स्वेट को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एंड इन दिस वे स्वेट इवेपोरेट्स, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। अगर हम कोई और कॉटन के अलावा कोई और कपड़ा पहनते हैं, नायलन का या उसका, तो जो है स्वीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो क्लॉथ, इसीलिए वो इवेपोरेट भी नहीं हो पाएगा।
सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो हम घर में मटका यूज़ करते हैं उसमें भी यही होता है। जो अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का बना होता है। ठीक है। सो वाटर इजीली उन पोर्स में से, उस मटके में से इवेपोरेट हो जाता है, और जब भी इवेपोरेशन होगा इट विल टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ओके, इसलिए पानी ठंडा रहता है। ठीक है। सिमिलरली जो कूलर होता है, कूलर में भी यही है। वाटर टैंक होता है, ठीक है, पंप उस वाटर टैंक वाटर को फिल्टर में लेकर जाता है। फिल्टर में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कूलर में लगाते हैं हम। ठीक है, उससे इवेपोरेट होता है वाटर, सराउंडिंग्स कूल होती हैं, और वार्म एयर जो है कूल एयर में चेंज हो जाती है। ठीक है। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सो this was your chapter, so interesting and so easy. You will read this, understand this, and if you have any doubt you can ask it in doubt class. Okay.